بیچاری عورتیں آتی ہیں ان کے پاس میں تو باقاعدہ طور سے اس کو جو ہے اس کو چھو کر کے دیکھتے ہیں، اس کے سب طرح کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ غیر محرم عورتیں جو ان کے پاس آ رہی ہیں، پھر وہ جو پردے کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں کہ کسی غیر محرم کے سامنے جانا نہیں چاہیے، اس کو ہاتھ پاؤں نہیں دکھانے چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب جو نصیحتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور جس وقت وہ بیچاری وہ کوئی عورت آتی ہے اس کے ساتھ میں کس طرح سے مخلوط طریقہ ہوتا ہے، کمرے بند کر کے اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے کہاں ایمان کی کیفیت رہتی ہے۔ لوگوں کو نماز پڑھانا خود سے چھوڑ دینا چاہیے، جائز کی اور ناجائز کی بات نہیں، ان کو چھوڑ دینی چاہیے نماز پڑھانی، کیونکہ ان کے پیچھے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی، جو جانتے ہیں، جن کو پتہ لگ گیا ہے، ان کو نماز ان کے پیچھے پڑھنی چھوڑ دینی چاہیے۔ شہر کے اندر کیا کہہ لیں، پورے ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جادو ٹونا، دعا تعویذ اکثر لوگ جاتے ہیں کرانے کے لیے، یہ کتنا صحیح ہے؟ دیکھیے، جادو کا جو معاملہ ہے جہاں تک ہے، تو جادو کی دو حالات بنتے ہیں۔ ایک تو حالت یہ ہے کہ انسان جیسے کوئی علاقے میں جنات رہتے ہیں، وہاں جا کر کے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو جنات اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، آسیب زدہ ہو جاتا ہے وہ انسان۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اثر ہو گیا۔ جادو جو ہے وہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جو عامل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان جنات کو باقاعدہ پروگرام کے تحت لا کر کے اس آدمی کے اوپر جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے پروگرامنگ کے تحت۔ اب پروگرامنگ کے تحت جیسے یہ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کی دشمنی ہے، آپس میں کوئی لڑائی ہوئی، چوٹ لگ گئی، مر گیا، ایک آپ باقاعدہ سے سپاری دے کر کے آتے ہیں، سپاری دے کر کے کسی کا قتل کراتا ہے کوئی آدمی، اس طرح سے یہ جادو ہے۔ مطلب جو جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں، دعا تعویذ کا کام کرتے ہیں، وہ پہلے خود بھیجتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اس پروگرام کے تحت ہی ان کو وہ کیا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے ان کا، اور وہ اس پروگرام سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جادو کرنا اور جادو کرانا یہ دونوں حرام کام ہیں، کفر ہے بالکل، یہ قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں وہ ایک طرح سے کفر کر رہے ہیں۔ اب جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ سود کے لیے ہمارا جو ہے قرآن کا فیصلہ ہے، یا شراب کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ سود کا لینے والا بھی جو ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے، سود دینے والے کے لیے بھی حرام ہے، جو لکھ رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، جو اس کے معاون اور مددگار ہیں اس کے لیے بھی حرام ہے، ایسی شراب کے لیے حرام ہے۔ تو یہ جادو کرنے والا، کرانے والا اور اس کے ساتھ جو مددگار لوگ ہیں وہ سب حرام کام کے اندر ملوث ہیں، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی اس کے لیے۔ اکثر میں ہم دیکھتے ہیں، اگر اسلام دھرم کی بات کریں تو شہر میں ابھی میرے نظروں میں کئی ایسے لوگ ہیں شہر کے اندر جو امامت بھی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ پیسے، جیسے ایک پیسہ ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اس کاروبار کے تحت وہ جادو ٹونا یا دعا تعویذ کرتے ہیں۔ تو وہ کہاں تک کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے ایسے لوگوں کے پیچھے؟ دیکھیے، کاروبار جو یہ جادو کا کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ لوگوں کو نماز پڑھانا خود سے چھوڑ دینا چاہیے۔ جائز کی اور ناجائز کی بات نہیں، ان کو چھوڑ دینی چاہیے نماز پڑھانی، کیونکہ ان کے پیچھے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی، جو جانتے ہیں، جن کو پتہ لگ گیا ہے، ان کو نماز ان کے پیچھے پڑھنی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ جو ہے ایک وبا ہے اس وقت جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو کاروبار کی طرح سے کر رہے ہیں لوگ۔ اس کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مخلوط ہوتا ہے۔ جب وہ بیچاری عورتیں آتی ہیں ان کے پاس میں تو باقاعدہ طور سے اس کو جو ہے اس کو چھو کر کے دیکھتے ہیں، اس کے سب طرح کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ غیر محرم عورتیں جو ان کے پاس آ رہی ہیں، پھر وہ جو پردے کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں کہ کسی غیر محرم کے سامنے جانا نہیں چاہیے، اس کو ہاتھ پاؤں نہیں دکھانے چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب جو نصیحتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور جس وقت وہ بیچاری وہ کوئی عورت آتی ہے اس کے ساتھ میں کس طرح سے مخلوط طریقہ ہوتا ہے، کمرے بند کر کے اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے کہاں ایمان کی کیفیت رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ بگاڑ ہو رہا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ ہمارے سماج میں نہیں ہے، ہندو سماج میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، یہ کرسچن سماج میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ جو جادو ٹونے کا معاملہ ہے، یہ قبالہ جادو، یہ یہودیوں کی دین ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی جو ایلومیناٹی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر قبالہ جادو ہی ہوتا ہے، جسے ہم کالا جادو کہتے ہیں، سفلی جادو کہتے ہیں۔ یہ سب حرام کام ہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے
डॉक्टर का पेशा है। लोग ये भी कहते हैं, अभी हमारी बात हुई बड़े देहरादून के अच्छे खासे मौलानाओं से जो इमामत भी करते हैं, वो सीधा सीधा अपने आप को डॉक्टर समझने लग गए। मतलब डॉक्टरों से तुलना करते हैं, बोलते हैं जी जैसे छोटा डॉक्टर होता है, बड़ा डॉक्टर होता है, वैसे हम लोगों में भी छोटे बड़े होते हैं और अपने हिसाब से पैसा लेते हैं। पैसे का भी मेरे समझ में नहीं आता कि क्या इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं या कोई तरीका भी होता है इस्लाम के, उससे बताइए कैसे हो। भाई देखिए, इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके लिए बिल्कुल मुनासिब अगर कोई ख़र्च है तो उसके लेने की इजाज़त है। आप अगर उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं तो वो आपके लिए जायज़ ही नहीं है। मुनासिब का क्या? मुनासिब से ये है कि आपका जो खर्च तावीज़ लिखने के अंदर अगर किसी आ रहा है, आपका ज़ाफ़रान का खर्च आ रहा है या कोई रोशनी का खर्च आ रहा है या गुलाब का खर्च आ रहा है, उतना पैसा आप ले लें, कुछ अपना मुआवजा ले लें, इससे ज़्यादा लेने का आपका कोई हक़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे थे हमारे टाइम के अंदर, डॉक्टर ऐसे थे कि वो बेचारे 5 रुपए की पर्ची से दवाई देते थे। आज भी देते हैं बहुत सारे डॉक्टर इस तरह से, अल्लाह ताला उनके ज़रिए से भी शिफा देते हैं। वो अपने आप को डॉक्टर मतलब अच्छा, जहाँ तक डॉक्टरी का सवाल है, इनका कहाँ पे उसके वो एक डॉक्टर बनने के लिए इस वक्त 50 लाख रुपए का खर्च आता है। ये लोग जो ये यहाँ से हमारे मदरसे से फारिगीन होते हैं, इसका खर्च भी ज़कात और सदक़ात से मदरसे वाले उठाते हैं, जो लोगों का पैसा होता है। इनका अपना कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता समाज के लिए। जिस वक्त ये वो डॉक्टर बन करके आता है, वो कम से कम 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनता है। एक तालीम लेकर के आता है, जानकारी लेकर के आता है, रिसर्च करके आता है। जी जी, तो ये सब कुछ जो है वो कंपैरिजन नहीं है। दूसरे ये है कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि ऑपरेशन फ्री करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि बिल्कुल मुनासिब कीमत के ऊपर दवाई देते हैं। तो आपका जो ये काम है, तक़वे का काम है। आप जिन्नात का इलाज अगर करना चाहते हैं तो तक़वे से इलाज हो सकता है। आपके अगर तक़वा आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो जिन्नात क्या, आप एक मक्खी नहीं उड़ा सकते। जिन्नात तो बहुत बड़ी चीज़ है। तक़वा अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, और तक़वे के अंदर इस तरह की हराम चीज़ों से, इस तरह की ज़ायद चीज़ों से, इस तरह के जो चार्जेस आप लेते हैं कि आप जो है किसी से तय कर रहे हैं 1 लाख रुपए, किसी से 50,000 रुपये तय कर रहे हैं, किसी से 10,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से 20,000 रुपये ले रहे हैं, ये सब जो है ज़ायद आप लोगों को दबा रहे हैं, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं आप। क्योंकि जिन्नात तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जादू आपको दिखाई नहीं दे रहा, बीमारी तो आपको दिखाई देती है। आपको मान लीजिए अगर किसी वजह से कोई फोड़ा फुंसी निकला है तो दिखाई देती है, ऑपरेशन होता है उसका। आपको अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है, मान लीजिए कैंसर है, तो आपको रिसर्च करके पता लग रहा है। वो खर्चे जो वो लेता है डॉक्टर, वो सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन का खर्चा लेता है। आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको सही मायनों में किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तो आप जो पैसा ले रहे हैं वो तो अल्लाह की तरफ से एक तरह से ऐसी मखलूक है कि जो हमें दिखाई नहीं देती है। अगर वो किसी वजह से असरअंदाज हो गई है या किसी प्रोग्राम से असरअंदाज हो गई है तो बिल्कुल माकूल तरीके से जो जायज़ खर्चा है वो आप ले लो, मगर उसके बाद जो आपको फतवे ने जो आपको जायज़ कर दिया है उतना पैसा ले लो, मगर आप उससे एक्सेस जो पैसा लेते हो तो आपके लिए भी हराम है। हाँ, एक चीज़ ये भी सुनने में आ रहा है कि हमने इससे पहले एक वीडियो चलाई थी इसी पे ही, तो उसके बाद से कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उसके बाद से कुछ फतवे लेकर घूम रहे हैं कि नहीं जी जायज़ है, ये जायज़ है, वो जायज़ है। और अगर इस यहाँ हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, भारत की अपने देश की बात छोड़ दी जाए, अगर हम मुस्लिम कंट्रियों की तरफ देखें, जैसे कि सऊदी अरब से इस्लाम का हुआ, अगर वहाँ पर हम सुनने में आता है, जहाँ तक हम सुनते हैं कि जैसे ही कोई जाता है वहाँ पर, कोई भी सफ़र में जाता है या कोई घूमने जाता है या कोई वहाँ पे अपने रोज़गार के लिए जाता है, तो अगर ये काला धागा भी बांधा होता है तो वहाँ से उतरवा दिया जाता है एयरपोर्ट पे ही। तो क्या हम उससे भी बड़े हो गए वहाँ से? देखिए भाई, जहाँ तक फतवे का सवाल है, फतवे के अंदर ये कहा है कि अगर किसी का कोई ऐसे वो इलाज किया जा रहा है तो उसके अंदर जायज़ जो मुआवजा है वो लिया जा सकता है, मगर उसके साथ शर्त ये है कि जो तावीज़ आप बना करके देते हैं उसके अंदर कोई शिरकिया चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर उस आदमी का ये यकीन नहीं होना चाहिए कि तावीज़ अगर मैं पहनूंगा और तावीज़ ये मुझे दे रहे हैं तो मुझे इससे फ़ायदा हो जाएगा, ये उसके अंदर शर्त है। मगर अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप तावीज़ देते हैं तो हर एक आदमी का यकीन होता है भाई मैंने तावीज़ पहन रखा, मेरी हिफाजत होगी, मेरा जो है मेरा सही हो जाएगा, मेरा इलाज हो जाएगा, यही तो होता है ना। और वो उस कंडीशन को तो वो कंडीशन से डिफ़र कर रहा है, वो उसके बिल्कुल बरक्स है कंडीशन कि वो उसके ऊपर यकीन कर रहा है तावीज़ के, जबकि उसे अल्लाह के ऊपर यकीन करना चाहिए कि अल्लाह मुझे शिफा देंगे। तो ये सब हालात के अंदर तावीज़ जो लोग दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ था,
लुबैदा यहूदी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया था, और वो जादू एक कुएं में डाला था उसने, और उस जादू के असर से वो कुएं का पानी का रंग बदल गया था। मगर जिस वक्त आपको पता लगा और आप वहाँ पर कुएं पे गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं पढ़ी हैं या कुरानी आयतें पढ़ी हैं, उससे उसकी हर जादू की गांठ खुली है। तो ऐसा है कि जादू है, मगर जादू का इलाज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज का जो मामला आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ उनसे मुआवजा नहीं लिया, तो तुम क्यों मुआवजा लेते हो भाई? अल्लाह के लिए करो, और अगर अल्लाह के लिए करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो असरअंदाज हो रहा है इस वक्त जिन्नात और गैर मरई जो ये एक अल्लाह की मखलूक है, ये आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है, और हर घर के अंदर आजकल ये मामला फैलता चला जा रहा है। तो ये जो है रुकेगा अगर आप तक़वा इख्तियार करोगे। और भाई अगर आपने कारोबार बनाना है तो इससे आप अपने माशरे को भी तबाह कर रहे हो, और अपने इस अमल से अपनी ज़िंदगी और अपने जो है आखिरत को ख़राब कर रहे हो। क्योंकि वजह ये है कि जो हमारे ये मज़हबी पेशवा हैं, इनके लिए कुरान ये कहता है कि अगर ये दुनिया की गरज से मालो मता जमा करते हैं और जो है जो दीन का काम करने, कुरान ये कहता है कि दीन का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो आसमान की छत के नीचे ये बदतरीन मखलूक है। तो इस कुरान की आयत के लिहाज से आप अगर ये दुनिया की ज़िंदगी के लिए सब मालो मता जमा करना, बिल्डिंगें बनाना और ये सब कुछ करना और गाड़ियों में घूमना, और सिर्फ ये है कि ये मकसद बना रखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जाए, तो इसके लिए तो आपको जो है आंसरेबल हैं आप अल्लाह के यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो आपने बोला कि जो दुनिया के उससे फ़ायदे के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने माल इकट्ठा करता है, वो चीज़ गलत है। हाँ बिल्कुल, ये जितने हमारे जिनको मजहबी पेशवा कहा गया है, उन मजहबी पेशवा के लिए कुरान की ये आयतें हैं इस तरह की। कुरान का ये जो है इनके लिए एक पैरामीटर तय किया गया है कि दुनिया का इनके लिए लालच है ही नहीं, इनके लिए तो सिर्फ दीन के लिए ज़िंदगी है, और इनकी ज़िंदगी का मकसद जो है अल्लाह के दीन को कायम व दायम करना और उसको जो है मजबूत करना है। और अभी अक्सर ये भी देखने में आता है अक्सर कि आपने आए दिन बाबाओं के या और भी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जो उनके यहाँ गैर महिलाएं जाती है, जैसे दूसरी महिलाएं जाती है जो उनके फैमिली की नहीं होती है, उनके साथ गलत व्यवहार भी सुनने को आता है कि उनके साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। और वो किसी कारण, चाहे अपने फैमिली के दबाव में, चाहे किसी भी उससे, समाज के डर से वो चुप बैठ जाती है, कुछ कहती नहीं है कि हमारे साथ गलत हुआ है, चाहे जो भी हुआ है। मगर उसमें मौलानाओं को क्या ये शोभा देता है, मतलब ये करना चाहिए इस तरीके से? भाई अभी हम आश्रमों के हाल देख रहे हैं, आश्रमों में औरतों के साथ बेचारियों की क्या क्या होता है, सब कुछ हमारे सामने आता है। ये जो हमारे इस तरह के मामलात हैं हमारे यहाँ पे चूँकि कम हैं, इस तरह की कोई बात हमारे सामने बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह की कोई बात हमारे अंदर से पैदा ना हो। इस समय बचना चाहिए हमारे मौलाना हजरात को। अगर औरतों के साथ इख्तिलात का मामला होगा तो खुद ही कहते हैं इस बात के लिए कि औरत के साथ इख्तिलात होगा, और औरत और मर्द का इख्तिलात होगा तो उसमें वहाँ पे शैतान वहाँ पर रहता है, तीसरा आदमी। तो जब आपके बीच में वो लोग, जब आपके बीच में सिर्फ जो है हमारे मौलाना हजरात हैं और वो बेचारी औरत है जो कि उस बीमारी से असरअंदाज है, तो आपके बीच में तो शैतान है भाई। जब शैतान है आपका तो आपके अमल भी जो है उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि आप क्या करेंगे उसके लिए। तो इससे बचना चाहिए, ये हमारे यहाँ भी होता चला जा रहा है, और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इस सब बातों से। ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में भी ऐसा ना हो कि जैसे आश्रमों के अंदर हो रहा है।